चलो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में अपन मेटल नॉन मेटल स्टार्ट किए थे ना, कुछ लिखे नहीं थे, बट वी डिस्कस्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आयनिक बॉन्ड। याद है आयनिक बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल। वही एक नई चीज थी इस चैप्टर में आप लोग के लिए अभी तक। ठीक है, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं, फिर अपन आयनिक बॉन्ड में आएंगे। ठीक है, एंड डाल दिए सर चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू elements are generally classified into elements are generally classified into three following types three following types three following types एबीसी करके तीनों लिखे ना, मेटल, नॉन मेटल एंड तीसरा मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड थर्ड है आपका मेटलॉइड्स। दिस क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दिस क्लासिफिकेशन is based on their this classification is based on their physical and chemical properties. Physical and chemical properties. Physical and chemical properties. पहले फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दिखते हैं इनकी, फिर हम मेटल नॉन मेटल में बॉन्डिंग में आएंगे। ठीक है, एंड डालना फिजिकल एंड केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals. Physical properties of metals and non-metals. फिर पहला लिखेंगे malleability. First, malleability. First physical property, malleability. 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 हाइफन डाल के लिखो इसमें। Property of a substance. Property of a substance. Property of a substance due to which property of a substance due to which it can be beaten into due to which it can be beaten into it can be beaten into thin sheet. It can be beaten into thin sheet. Thin sheet. So metals are malleable. Metals are malleable. Metals are malleable, while non-metals are not. While non-metals are not. Exceptions हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी के एक्सेप्शंस। ठीक है, लास्ट में लिखूंगा सारे एक्सेप्शन, तो एक साथ आपको एक्सेप्शन दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मेटल्स आर मैलिएबल व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉट। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे डक्टिलिटी। ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, राइट? तो लिख लेते हैं बस डक्टिलिटी। इसमें लिखो आइकन डाल के, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस property of a substance by which it can be drawn into properties of a substance by which it can be drawn into by which it can be drawn into thin wires, thin wires, thin wires. So, metals are ductile, metals are ductile, metals are ductile,
while non-metals are not. While non-metals are not. ये सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी. थर्ड लिखेंगे कंडक्शन ऑफ हीट. कंडक्शन ऑफ हीट. कंडक्शन ऑफ हीट. Metals are good conductors of heat. Metals are good conductors of heat. Metals are good conductors of heat, while non-metals are bad conductors of heat. While non-metals are bad conductors of heat. Metals are good conductors of heat, while non-metals are bad conductors of heat. तो इसको करके एक लाइन और लिखना. Silver and copper are the best conductors. Silver and copper are the best conductors. Silver and copper are the best conductors. Next, conduction of Sir, are the best conductors. Conduction of electricity. Conduction of electricity. Again, metals are good conductors of electricity, while non-metals are bad conductors of electricity. Metals are good conductors of electricity, while non-metals are bad conductors of electricity. Metals are good conductors of electricity, while non-metals are bad or poor conductor of electricity. Next, fifth point. हो गया सबको यहाँ तक चारों प्रॉपर्टी. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखना अपीयरेंस ऑफ सरफेस. अपीयरेंस ऑफ सरफेस. अपीयरेंस ऑफ सरफेस. ठीक है, इसमें लिखना metals in their pure state. Metals in their pure state. Metals in their pure state have a shining surface. Have a shining surface. प्योर स्टेट की बात करें कि मेटल भी कोरोड होते हैं, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ये शाइनिंग अपीयरेंस कम होता चला जाता है. ठीक है, डल हो जाएंगे वो भी, बट जब प्योर स्टेट में थे तब वो भी शाइनिंग होंगी. ठीक है, तो metals in their pure state have a shining surface called metallic luxure. Called metallic luxure. Called metallic luxure. Non-metals are generally non-luxurious. Non-metals are generally non-luxurious. LUSTROUS हो जाएगा. ठीक है, non-metals are generally non-luxurious. दोस्तों एक लाइन और मेटल के बारे में लिखना. मेटल ऑन reacting with gases in atmosphere. Metal on reacting with. Metal on reacting with gases in atmosphere. Metal on reacting with gases in atmosphere lose its shiny appearance. Lose its shiny appearance. Lose its shiny appearance when kept in air for long time. When kept in air for long time. Lose its shiny appearance when kept in air. When kept in air for long time. ठीक है, ये कौन सी नंबर की प्रॉपर्टी थी? फिफ्थ ना. नेक्स्ट सिक्स लिखना हार्डनेस. सिक्स हार्डनेस.
Hardness. Metals are generally hard. Metals are generally hard. While non-metals are generally soft. While non-metals are generally soft. While non-metals are generally soft. Next, अगला पॉइंट लिखा है डेंसिटी. एक्सेप्शन में आ जाएगा. कौन बोला? एक्सेप्शन में. हाँ. नेक्स्ट, डेंसिटी. डेंसिटी. ठीक है. अब मेटल्स जनरली सॉलिड होंगे तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी. ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा ना. डेंसिटी क्या होता है? इट इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी. ठीक है, तो लिखो इसको भी हैपन करके. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी देन नॉन मेटल्स. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी देन नॉन मेटल्स. Metals have high density than non-metals. अगला, melting point, boiling point. Melting and boiling point. ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना. सॉलिड होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में लिखना. जनरली metals have high melting and boiling points. Generally metals have high melting and boiling points. Generally metals have high melting and boiling points. Next, physical property. Physical state. Physical state. Physical state. Ninth property, physical state hyphen डाल के लिखेंगे. Metals are generally solid at room temperature. Metals are generally solid at room temperature. Again इसका एक्सेप्शन मर्क्यूरी अपन एक्सेप्शन वाले लिस्ट में लिखेंगे. Metals are generally solid in nature. Solid at room temperature. Sorry, solid at room temperature. While non-metal are present in. While non-metals are present in. While non-metals are present in all the three states. All the three states. मतलब कुछ नॉन मेटल्स हमें सॉलिड स्टेट में मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर ना. ये बात हम किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर. देखिए वरना आयरन तो मेल्ट होकर लिक्विड भी बन सकता है और वेपर्स भी हो सकते हैं आयरन के. बट हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं. रूम टेम्परेचर में आयरन सॉलिड ही होगा. ओके, एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखेंगे 10. क्या बच गया एक प्रॉपर्टी? सोनोरिटी. सोनोरिटी कोई साउंड वाला ना, सोनोरस. ठीक है, इसमें देखो हाइफन डाल के. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड. It is the property of producing sound on striking a hard surface. On striking a hard surface. On striking a hard surface. So metals are sonorous while non-metals are not. Metals are sonorous while non-metals are not. ठीक है, इनमें एक्सेप्शंस लिखेंगे. नेक्स्ट एक सब डालना. एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज.
ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है। इसको सबसे पहला एक्सेप्शन लिखना फर्स्ट, इसमें नॉन मेटल मेटल जिनके भी जो भी एक्सेप्शन होंगे सब लिख देंगे ना, ग्राफाइट, डायमंड, ठीक है, आयोडीन। तो फर्स्ट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, ग्राफाइट कॉमा अ नॉन मेटल, ग्राफाइट कॉमा अ नॉन मेटल, ग्राफाइट कॉमा अ नॉन मेटल is a good conductor of electricity, is a good conductor of electricity. Graphite comma a non-metal is a good conductor of electricity. लेड सेकेंड लिखेंगे, आयोडीन इज अ लक्ष्यरस नॉन मेटल, आयोडीन इज अ iodine is a luxurious non-metal. Iodine is the luxurious non-metal. Next, third point, diamond, 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 an allotrope of carbon, diamond, comma, an allotrope. एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है बता रहा हूं आप लोगों को। एलोट्रॉप, एलोट्रॉप का मतलब होता है एक ही मेटल या एक ही एलिमेंट के अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन है ना, ग्राफाइट भी कार्बन से ही बना हुआ है और डायमंड भी कार्बन से ही बना हुआ है, बट दोनों का स्ट्रक्चर्स अलग अलग, और स्ट्रक्चर्स अलग अलग होने के कारण उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफाइट की अगर बात करूं तो ग्राफाइट एक अच्छा कंडक्टर है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसा है। वही डायमंड भी कार्बन से ही बना हुआ है बट एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो डायमंड इज द टफेस्ट या हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। आप डायमंड से एक मेटल को भी कट कर सकते हो, डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है, राइट। तो डायमंड बीइंग अ नॉन मेटल हार्डेस्ट है, और उसी कार्बन से ग्राफाइट बना हुआ है, वो सॉफ्ट मटेरियल होता है ग्राफाइट। हम ग्राफाइट से ग्रीस बनाते हैं, ग्रीस जानते हैं ना, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है ग्रीस, लुब्रिकेशन के काम आता है ना। तो वो एक तो सॉफ्ट मटेरियल है प्लस स्लिपरी भी है, समझ रहे ग्रीस। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आए जस्ट बिकॉज इनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे मैं ग्राफाइट की बात करूँ ना, तो ग्राफाइट में कार्बन जो है वो कुछ इस फैशन में कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस। हेक्सागन समझते हैं ना, ये तीन हेक्सागन दिख रहा है आपको। ऐसे एक लेयर है ये, ऐसी और दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर ऐसी आएगी प्लेन में। मान लीजिए इसी की चीज को मैं यहाँ अगर बना रहा हूँ तो ये एक हेक्सागन है, इसी से लगा हुआ दूसरा हेक्सागन है, दूसरे से लगा हुआ तीसरा हेक्सागन है, ऐसी एक लेयर और दूसरी लेयर तीसरी लेयर सब रहेगी यहाँ पे। ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर होता है, इसे अपन कहते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर। एक लेयर कार्बन की है, फिर वापस एक लेयर होगी, फिर दूसरी लेयर होगी, और ये लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, तभी उसके पास एक स्लिपरी प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम लुब्रिकेटिंग मटेरियल ग्रीस बनाने में यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। यहां अगर आप देखोगे ना तो हर कार्बन तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ तीन ही बॉन्ड बना रहा है, ध्यान देना। एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तीसरी बॉन्ड यहाँ, ठीक है आपको। जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, क्यों ऐसा, क्योंकि कार्बन के पास आखिरी शेल में, आप लोगों को याद है अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखे थे लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का ऐसे ही बनेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी कि आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, will show that 4 electrons like this, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। अब इसको 8 करने के लिए 4 चाहिए ना, नहीं, अगर इसको 8 यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है 4। सोडियम एक लूज करता है इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन एक गेन करता है इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम 2 लूज करता है इसलिए उसकी वैलेंसी 2 है, कैल्शियम 2 लूज करता है इसलिए उसकी वैलेंसी 2 है,
+2 लिखते हैं ना, Ca+2 Mg+2। ऑक्सीजन 2 गेन करता है इसलिए उसकी वैलेंसी -2 है। सल्फर 2 गेन करता है इसलिए उसकी वैलेंसी -2 है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एल्यूमिनियम 3 लूज करता है इसलिए उसकी वैलेंसी +3 है। नाइट्रोजन 3 गेन करता है इसलिए उसकी वैलेंसी -3 है। समझ रहे हैं? तो +1 वाले कुछ एक दो एग्जांपल याद रखेंगे हमेशा, +2 वाले, +3 वाले, -1 वाले, -2 वाले, -3 वाले। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ये उनकी वैलेंसी बता रहा है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। हम डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास में ये चीज की, NaCl, MgCl2, AlCl3, कि Na जो है वो एक ही Cl के साथ कंबाइन कर रहा है, बट मैग्नीशियम नीड्स 2 Cl एंड एल्यूमिनियम नीड्स 3 Cl। तो अकॉर्डिंगली इनकी वैलेंसी 1, 2 एंड 3। समझ रहे? तो कार्बन की वैलेंसी 4, मैं कह रहा हूं, ठीक है, और बाकी किसी की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। समझ रहे? या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बट कभी भी वो 5 गेन या 5 लूज नहीं करेगा। अगर ऐसी नौबत आएगी तो वो 5 गेन करना अगर उसको पड़ा तो उसके बजाय वो 3 लूज करना पसंद करेगा। सर फॉस्फेट, हाँ सर फॉस्फेट 4 मतलब गेन ही काहे करता है सर, लूज काहे नहीं करता? फॉस्फेट, सर कुछ नहीं सर। अरे गुस्सा क्यों हो गया बता ना, नहीं सुनाई दिया सही में, बोल। फॉस्फेट चार्ज लेने की वजह चार्ज देता क्यों है? फॉस्फेट फॉस्फोरस होगा ना, मतलब आप पी की बात कर रहे हो, फॉस्फोरस, फॉस्फेट तो आपका ये हो गया PO4 3 नेगेटिव, यस सर। दिस इज फॉस्फेट। तो यहाँ इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और ये तो खैर आपका एक पॉलीएटॉमिक आयन है, मैं तो इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मोनो एटॉमिक्स, यानी कि मोनो एटम, सिंगल सिंगल एटम। कि फॉस्फोरस आपका नाइट्रोजन के जैसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फॉस्फाइड बनाता है, जस्ट लाइक नाइट्रोजन। अगर आप इसे यस सर। कन्फिग्रेशन देखोगे तो फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन क्या है, 2,8,5, 15 एटॉमिक नंबर, तो 2,8,5। अब ये 5 लूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, 3 गेन करेगा। अब यही है कि 5 लूज करना ज्यादा मुश्किल है ना, आपको यस सर। हर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन लूज कराने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। न्यूक्लियस सब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है ना, उसके अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस ने उनको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्शन रहेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वी हैव टू गिव एनर्जी, ऐसे ही बाहर नहीं आया कि मैंने बोल दिया बाहर आ जाए। हाँ, गेन करने में एनर्जी रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, गेन करने में एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो गेन करना आसान है कंपैरेटिवली लूज करने से। समझ रहे हैं? पर फिर अगर अपन ऐसा बोले कि अगर ऐसा गेन करना आसान है तो मेटल गेन क्यों नहीं करते? अब उनकी एक्चुअली टेंडेंसी है ऐसी कि मेटल लूज करना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल गेन करना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो एलोट्रॉप का मतलब समझ में आ गया ना? अच्छा, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, तो डायमंड का स्ट्रक्चर इसका जस्ट अलग होता है, कुछ ऐसा। एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड रहेगा। ये कार्बन देखो 1 2 3 4 से कनेक्टेड है, ऐसे ही सारे कार्बन डायमंड में 4 4 कार्बन से कनेक्टेड होते हैं। मतलब पूरा का पूरा 4 वैलेंसी है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 3 ही हो रहा है ना, हर कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सबका बचा रहेगा। यानी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बनाए थे ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, बचा एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तभी अपन बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और वही डायमंड की बात करोगे तो चारों बॉन्ड बन चुकी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? चलो ओके, तो ये एक्सेप्शन लिख लीजिए सर। डायमंड, an allotrope of carbon is the hardest substance, is the hardest substance, is the hardest substance. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट
अगला एक्सेप्शन, सोडियम एंड पोटेशियम बीइंग मेटल्स, sodium and potassium being metals are soft enough to be cut by knife, are soft enough to be cut by knife. Being metals are soft enough to be cut by knife. ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखना, मर्क्यूरी कॉमा अ मेटल, mercury comma a metal is liquid at room temperature, is liquid at room temperature, is liquid at room temperature. Liquid at room temperature. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, mercury a metal is liquid at room temperature. Hg, हाइड्रोगैरम इसका लैटिन नेम है ना, Hg सा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट, लेड एंड बिस्मथ, lead and bismuth, lead and bismuth being metals are poor conductor of electricity, are poor conductor of electricity, are poor conductor of electricity. कैसे कहाँ देखें, बिस्मथ भी ऐसी मेटल है, बिस्मथ हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारे आपके मेटल भी होते हैं, ठीक है। चलो अगला, डायमंड बीइंग नॉन मेटल, वो तो अपन हार्डनेस के लिए लिखे थे ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का भी पॉइंट लिखना है उसके लिए। डायमंड बीइंग अ नॉन मेटल have high melting and boiling point, have high melting and boiling point. ठीक है, ठीक है, तो एक्सेप्शंस कितने हो गए, एक्सेप्शंस 7, ठीक। नेक्स्ट इन डाला, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें पहला केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन, हाँ दोनों को साथ में लिखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, हाँ बेसिक नेचर के, पढ़े ना अपन एसिड बेस सॉल्ट में कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर व्हाइल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया दोनों में, ठीक है। तो लिखो इसको नीचे, almost all metal combined with oxygen, almost all metal combined with oxygen, almost all metal combines with oxygen to form metal oxides, to form metal oxides, to form metal oxides, ठीक है। ऑक्साइड का तो आपको ये पता है, सिंबल O2 नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बस मेटल का वैलेंसी पता होना चाहिए, आप फॉर्मूला बना लोगे, समझ रहे हैं। मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड ही बनेंगे, जैसे अगर आपको Mg का बनाना होगा तो Mg2 पॉजिटिव होता है और O2 नेगेटिव है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, MgO,
Al के साथ बनाना तो Al3 पॉजिटिव होता है, O2 नेगेटिव होता है तो Al2O3। आयरन के दोनों पॉसिबल है, FeO भी बन सकता है, Fe2O3 भी बन सकता है, ठीक है। कॉपर के भी दो बन सकते हैं, CuO एंड Cu2O, क्यूप्रस क्यूप्रिक, है ना। ये अस और एक पता है ना कब यूज करते हैं अपन, जब कोई मेटल एक से ज्यादा वैलेंसी एक्वायर करता है, तब उसकी छोटी वाली वैलेंसी के लिए अपन अस वर्ड यूज करते हैं। जैसे Fe2 पॉजिटिव को हम फेरस बोलते हैं एंड Fe3 पॉजिटिव को हम फेरिक बोलते हैं। तो अस इज यूज फॉर लोअर वैलेंसी एंड इक इज यूज फॉर हायर। वैसे कॉपर 1 पॉजिटिव भी होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव भी होता है। तो क्यूप्रस क्यूप्रिक। पीबी भी दो होते हैं, Pb2 पॉजिटिव होता है, Pb4 पॉजिटिव भी होता है। तो हाँ, तो एक होता है आपका प्लम्बस, एक प्लम्बिक। लेड का प्लम्बम से आया ना नाम, तो लेडस लेडिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्लम्बम, सॉरी, प्लम्बस एंड प्लम्बिक, ठीक है। क्या मल्टीपल वैलेंसी मेटल और इसका रिएक्शन कर सकते हैं, बनाते हैं ना। सिलिकॉन का भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है, सैंड तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही, हाँ। क्या लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। नीचे लिखो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, metal oxides are basic in nature, metal oxides are basic in nature। तो some metal oxides are, some metal oxides are amphoteric in nature। ये amphoteric भी पढ़े अपन, याद है किसी को? सर मेटल ऑक्साइड्स आर Basic in nature, some metal oxides are amphoteric in nature। किसी को याद नहीं? और ये दो ग्रुप रहते थे। हाँ, ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं। मतलब देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स जो बेसिक भी होंगे और एसिडिक नेचर के भी होते हैं, उसको अपन एम्फोट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक काम करो, पहले एम्फोट्रिक का मतलब ही लिख लो। क्या लिखे? सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोट्रिक इन नेचर, ब्रैकेट में लिखो, दैट इज दे बिहेव बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस। दे बिहेव, दैट इज दे बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस, उसको एम्फोट्रिक बोलते हैं। मैंने सर पढ़ते हुए बताया भी था कि एम्फी का मतलब बोथ होता है। एम्फीबियंस बोलते हैं ना हम, एम्फीबियंस आर द एनिमल्स व्हिच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। वहीं से ये एम्फी वर्ड आया है, एम्फीबियन से, एम्फोट्रिक, ठीक है। तो इसको कुछ एग्जांपल लिखना, ऐसे कौन से ऑक्साइड्स हैं जो मेटल होने के बाद भी एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो एग्जांपल में, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका Al2O3, ठीक है। ये दो ऑक्साइड्स याद रखिएगा, they are amphoteric in nature, they are not just basic, they are also acidic in nature। मतलब अगर आप Al2O3 को, ध्यान देना, अगर आप Al2O3 को एक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो आप Al2O3 बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हैं? रिएक्शन भी लिख लो इसका दोनों का। Al2O3 प्लस HCl ले लेता हूं मैं, gives AlCl3 प्लस H2O। रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन ही होगा ना, समझ रहे हो? अभी HCl एक एसिड है तो अभी Al2O3 बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। इसको बैलेंस करो तो जल्दी से बैलेंस करिए। और नीचे रिएक्शन में बेस के साथ करवा रहा तो अब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जल्दी से बैलेंस करो ऊपर वाले इक्वेशन को, होगा बैलेंस? बैलेंस हो गया। बाकी लोग भी जल्दी करो।
सोडियम एल्यूमिनेट, एक जिंक के साथ भी बनाया अपन, सोडियम जिंकेट। ये आप लोग के आया था ना क्वेश्चन एग्जाम में, किसके में आया था ये वाला? यस सर। ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोला था ना, इतना लिख के छोड़ दिया था, कंप्लीट द रिएक्शन करके। हुआ है? ये 6 क्लोरीन है, यहाँ 3 ही क्लोरीन है। हाँ देखो कैसे करें इसको बैलेंस। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ 2 करने के लिए सामने 2 लगेगा। सर 2। किसी का हुआ, आपका हुआ मतलब बताओ क्या लिखूं? 6x, ये ऐसे ही है, और बाकी सर 3। 3, ठीक है 6 6, हाँ ठीक। ये इसका बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। सेकंड वाला सर नहीं किया। यहाँ भी आएगा ना 2, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है क्या? खोल के देख रहे थे, नहीं समझ में आया? क्या नहीं आया? समझ नहीं आई। चलो पीछे करके दिखाओ उसको बैलेंस, ठीक है। Al2O3 वाले को ही, HCl वाले को, Al2O3 plus HCl gives AlCl3 plus H2O, ठीक है। ध्यान से देखना जिनको बैलेंसिंग समझ में नहीं आई। एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड में 2 है, राइट? आप तो बोल दो। और राइट में 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन लेफ्ट में 3 है, राइट में सिर्फ 1 है, ठीक है। क्लोरीन लेफ्ट में सिर्फ 1 है और यहाँ पे 3 है। किसी एलिमेंट के साइड में जो नंबर लिखा रहता है सब्सक्रिप्ट में, वो उसी का होता है, राइट? अनलेस एंड अनटिल अगर ब्रैकेट ना लगा हो तो, ठीक है। मतलब अगर AlOH का मैं थ्राइस लिख दूं तो ये 3 अब दोनों के लिए है ना, O के लिए भी और H के लिए भी। बट यहाँ पे ये जो 3 लगा ये सिर्फ Cl का ही है ना, Al का नहीं है। अगर Al और Cl दोनों के लिए वो 3 लगाना होता तो हम 3 आगे लगाते, राइट? और क्या बच गया? हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है बस, और यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? ये तो अपन देख लिए कि ये इक्वेशन अनबैलेंस है, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 2 करने के लिए क्या कर सकते हैं? सामने 2 लगाएंगे, इसी से होगा बैलेंस, और तो कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, ठीक है। बट ऐसा करने से सिर्फ Al नहीं बढ़ा है, Cl भी बढ़ गया है, क्योंकि जो नंबर अपन किसी कंपाउंड के सामने लगाते हैं वो सबके लिए होता है। मैं क्लियर? जो नंबर हम सामने लगाते हैं ना, दैट नंबर इज फॉर होल कंपाउंड। तो ये एल्यूमिनियम को 2 कर दिया, बट क्लोरीन को बढ़ा के 6 कर दिया, समझ रहे? ऐड नहीं करना, जनरली ये गलती होती है कि हम ऐड कर देते 2 + 3 5, बट एक्चुअली वो कितना है? 6। अगर आपको डाउट होता तो आप AlCl3 को 2 बार लिख के देख लो। 2AlCl3 का मतलब क्या? AlCl3 एंड AlCl3, तो 3 और 3 6। मतलब याद रखना हमेशा कि हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 3 6, तो ऐसा ये बढ़ के कितना हो गया? 6। अब यहाँ 6 करना है तो एक ही ऑप्शन है, हम यहाँ पे 6 लगाएंगे। कभी भी ऐसे 6 मत लगाना, ठीक है, उससे फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो 6 HCl लगाने से हाइड्रोजन बढ़ के कितने हो गए? 6। अब यहाँ हाइड्रोजन 6 करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 2 6। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, 3 इधर है और 3 इधर। समझ गए? चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये दोनों रिएक्शन लिख लिए ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले, ओके। तो पहले रिएक्शन में एल्यूमिनियम बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरे रिएक्शन में एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तभी अपन बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक इन नेचर, दैट इज इट कैन बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज लाइक बेस। सेम सेम होगा, ठीक है। तो जिंक लेंगे तो वो जिंकेट बनेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट लाइन में लिखना, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। Most metal oxides are insoluble in water. Most metal oxides are insoluble in water. कोई एग्जांपल बताएगा मुझे जो soluble oxides होंगे मेटल के? मैग्नीशियम ऑक्साइड और
गायब कर दिया। आप नया ये हाँ कर गया तुम। हाँ देखो Na2O इज ऑक्साइड ऑफ सोडियम राइट। इसको जब पानी में मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा NaOH। तभी तो इसको अपन बेसिक नेचर का बोल रहे हैं ना। वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि उन मेटल ऑक्साइड्स को जब पानी में मिलाते हैं तो बेस बन जाता है NaOH। और अपन एल्कली नाम का भी कुछ पढ़े ना, एल्कली क्या होते हैं? These are the bases which are soluble in water. Soluble in water, bases which are soluble in water are called alkali। तो NaOH एक alkali होता है, KOH एक alkali होता है राइट। तो Na2O K2O ये आपके ऐसे मेटल ऑक्साइड्स है जो पानी में डिसॉल्व होंगे, बट मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम डिसॉल्व टू फॉर्म alkalis। some dissolve to form alkalis, but some dissolve to form alkalis। alkalis क्या होते हैं लिखाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे याद है सबको। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स। सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखना नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस, एनोडाइजिंग ANODISING। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस of forming a thick oxide layer of, anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium that makes it resistant to resistant to further corrosion, तो क्या मतलब हुआ? अभी हम अपने घरों में एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज करते हैं ना, क्योंकि जब आप लेके आते हैं तो वो शाइनिंग होते हैं, पर कुछ समय के बाद उनमें एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जिससे वो और आगे रस्ट नहीं होते। ठीक है, मतलब Al2O3 की एक लेयर जो बन गई है ना, वो अनरिएक्टिव लेयर होती है। अब वो और पानी या एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग। और ये अपने आप होता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। आप एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स को घर में रखो, कुछ दिनों बाद वो थोड़े से डल भी हो जाएंगे दिखने में, और अब वो और फर्दर कोरोड नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो अगर बात मेटल्स की। नीचे लिखोगे नॉन मेटल रिएक्ट विथ एयर। नॉन, अपना हेडिंग तो यही है ना, रिएक्शन विथ एयर, ये रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ना। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, non-metal react with oxygen to form, non-metal react with oxygen to form non-metal oxide या non-metallic oxide, non-metallic oxide। full stop। These oxides are acidic in nature, these oxides are acidic in nature, क्योंकि ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो ये एसिड बनाएंगे। तो अपन एसिड रेन बोलते हैं। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड, SO2 बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा नाइट्रिक एसिड। ये सारे ही आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। कौन कौन से नाम मैंने लिए? एक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वो जाके पहले कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा, फिर जाके अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड ही बनेगा। ठीक है, हाँ लिखो इसमें, दे आर यूजुअली क्या लिखे? एसिडिक इन नेचर लिखिए ना,
These are acidic in nature since they react with water to form acids. Since they react with water to form acids. Since they react with water to form acids. कुछ एग्जाम्पल लिखना, कुछ एग्जाम्पल लिखना कि CO2, SO2, NO2. ठीक है, चलो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी लिखना, रिएक्शन विथ वाटर. रिएक्शन विथ वाटर. Reaction with water. All metal reacts with. All metal do not react. लिखना पहले. All metal do not react with water. All metal do not react with water. Some examples. इतना नहीं है, पूछ रहा हूँ. जो पानी में रिएक्ट नहीं करते हैं. आयरन रिएक्ट नहीं करता पानी में, तो रस्ट कैसे बनता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम है ना, ये आपके अनरिएक्टिव एलिमेंट्स है ना. ठीक है, देखो मर्क्यूरी रिएक्ट करेगा बट लाइटली, बहुत कम. ठीक है, मतलब वो भी इनर्ट टाइप का ही है मर्क्यूरी भी. ये भी आपकी रिएक्टिविटी से मर्क्यूरी भी नीचे आता है ना, आपके हाइड्रोजन के नीचे है मर्क्यूरी. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज याद है जो स्टार्ट होती थी पोटेशियम से, एंड अपन सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड से करते थे, राइट. तो सारे मेटल्स भी एक जैसे रिएक्ट नहीं करते. कुछ मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम ना. आपको बस ठंडा पानी उनके ऊपर डालना है, वो जल जाएंगे, इतना ज्यादा रिएक्शन उनका विग्रस होता है. तो देयर आर सम मेटल्स जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे. सम नीड्स हॉट वाटर टू रिएक्ट. देखो, वाटर को हीट करके हम रिएक्टिविटी बढ़ा रहे हैं. जैसे आप पानी को हीट करते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना पानी में. आप शक्कर अगर ठंडे पानी में 1 चम्मच घोल पा रहे हो, तो गर्म करोगे तो 2-3 चम्मच और घोल लोगे, बिकॉज सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो आप गर्म पानी के साथ ट्राई करो, तो हो सकता है वो गर्म के साथ रिएक्ट कर जाए. और अगर उसके साथ भी ना करे तो स्टीम. तो 4 वैरायटी के मेटल्स अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं. 1 विथ कोल्ड वाटर, 2 विथ हॉट वाटर, 3 विथ स्टीम, एंड 4 जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे. समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए लिख रहे हैं ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, फुल स्टॉप. दोज व्हिच रिएक्ट विथ those which react form metal oxides or hydroxides. Metal oxides or hydroxides and hydrogen gas. मतलब कुछ मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं और कुछ हाइड्रोक्साइड. प्लस हाइड्रोजन गैस तो दोनों में होगी. ठीक है, तो एंड हाइड्रोजन गैस, फुल स्टॉप. तो दोनों टाइप का रिएक्शन लिखना नीचे. मेटल प्लस वाटर, मेटल एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं हम बस. ठीक है, मेटल प्लस वाटर gives metal oxide, और ऑब्लिक करके हाइड्रोक्साइड भी लिख लेना. ऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, प्लस हाइड्रोजन. एक एग्जांपल लिखोगे? हाँ लिख सकते हैं, वही है, इवॉल्व भी है. ठीक है, एक एग्जांपल लिखना. एग्जांपल, metals like sodium and potassium, metals like sodium and potassium react with cold water. ये highly reactive metals हैं. react with cold water vigorously, vigorously, vigorously.
VIGOROUSLY, vigorously, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि अगर अपन बाहर रख देंगे तो वो ऑक्सीजन या वाटर का कंबाइन करके बहुत एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन देगा, ठीक है, आग लग जाएगी। ओके, फुल स्टॉप। मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, metals like magnesium react with hot water, करेगा। जैसे अगर वो ठंडे पानी में कर पा रहा है तो वो गर्म पानी में क्यों नहीं करेगा? हाँ, हम गर्म पानी क्यों यूज करेंगे कि कुछ मेटल्स प्लीज रिएक्टिव है, कम है रिएक्टिव, इसलिए अपन गर्म पानी से रिएक्ट करके देखते हैं, ठीक है। विथ हॉट वाटर, फुल स्टॉप। आयरन कॉमा जिंक रिएक्ट्स विथ स्टीम, iron comma zinc react with steam while lead comma silver comma gold and platinum, while lead comma silver comma gold comma platinum do not react with water at all, do not react with water at all, do not react with water at all। तो सब में हाइड्रोजन गैस क्यों लिबरेट हो रही है, इसका मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। कोई भी अगर एक मेटल है और अगर वो वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है तो वाटर में दो आयंस है ना, एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट। अब ये मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इधर मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन आयन उसको गेन करके H बना लेगा, होगा ऐसा। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। हाँ, ये रिएक्शन पूछ रहा हूँ सर रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, रिडक्शन। ऊपर जो हुआ है वो आपका ऑक्सीडेशन है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, मेटल जो है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन गया कैटायन, ऑक्सीडेशन। और यही इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन आयन ने गेन किया और बन गया H, रिडक्शन। समझ रहे? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? मेटल प्लस H2O गिव्स मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, वो डिपेंड करेगा हमारा मेटल कौन सा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो बने। समझ रहे? अब ये रिएक्शन नॉन मेटल नहीं कर सकते क्योंकि नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन देने नहीं वाले, नॉन मेटल की टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है ना, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट ही नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके पहले अपन जो लिखे थे ना ऑक्सीजन का, तो वहां पे मेटल और नॉन मेटल दोनों ही ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहे थे, मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट। बट जब वाटर की बात आएगी या जब एसिड की बात आएगी, जहां पे H पॉजिटिव है, वहां आपके सिर्फ मेटल ही रिएक्ट करेंगे। सेम रिएक्शन एसिड के साथ भी होगा, वहां भी हमें एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये तो अपन एसिड के रिएक्शन में ही पढ़े, जब हम एसिड पढ़ते थे तो एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ते थे अपन कि मेटल प्लस एसिड गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी आया था आप लोग के क्वेश्चन में, मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों निकली? अगेन आपके मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एसिड के H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहाँ पे किसका H पॉजिटिव है? वाटर का। समझ में आ रही बात? तो दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, whether a metal react with water or with acid, दोनों में ही मेटल के साथ H पॉजिटिव है, और मेटल दोनों ही रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दोनों ही रिएक्शन में H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगा। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों के साथ आपके नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ही नॉन मेटल रिएक्ट करेगा पानी के साथ, ना ही नॉन मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ टू गिव हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रही बात? ठीक है, यहाँ आपने पूरा इसका लिख लिया ना, मेटल के बारे में। रिएक्शन लिख लो एक एक करके, तीनों में एक एक रिएक्शन लिखेंगे अपन, तीनों के लिए एक एक करके रिएक्शन लिखते हैं। एक कोल्ड वाटर वाला लिखते हैं, एक हॉट वाटर वाला लिखते हैं, एक स्टीम वाला लिखते हैं।
देखो एक एक करके। फर्स्ट K प्लस H2O, K प्लस H2O, K बोले तो पोटेशियम प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2, और यहाँ पे हीट भी लिखना प्लस करके। ये आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, सोडियम पोटेशियम। तो ये विग्रस रिएक्शन करेंगे। विग्रस कहने का मतलब दे विल लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट भी लिखेंगे, समझ रहे हैं? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक होता तो हम रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखते, एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड में हीट निकलेगी। क्लियर है फर्स्ट रिएक्शन, है ना? सेकेंड रिएक्शन लिखना हॉट वाटर के साथ वाला, कैल्शियम प्लस H2O, कैल्शियम प्लस H2O, कैल्शियम प्लस H2O gives CaOH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो सब में लिखना है, ठीक है? Ca प्लस H2O gives CaOH twice प्लस H2। एंड लास्ट एक स्टीम के साथ भी लिख लो, आयरन का रिएक्शन ही लिख लेते हैं। ये तो रिएक्शन अपन लिखे भी आयरन का, अगर जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है मुझसे, हम इसी को स्टार्ट करते थे बैलेंसिंग करने के लिए। Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। इसका रिएक्शन का बैलेंसिंग भी करवाया मैंने। यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ 3 करने के लिए सामने 3 लगा देंगे, राइट? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 करने के लिए सामने 4 लगा देंगे। हाइड्रोजन हो गया 8, यहाँ 8 करने के लिए सामने 4 लगा देंगे। क्लियर है? एक लाइन नॉन मेटल के लिए भी लिख लो। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर to form hydrogen gas. Non-metal do not react with water to form hydrogen gas. Since non-metal has the tendency to gain electron. Since non-metal has the tendency to gain electron. Since non-metal has tendency to gain electron. ठीक है, छोटा सा 2 लाइन का मैकेनिज्म जरूर लिख लेना कि मेटल को मैं M से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है? इट इज लूजिंग N इलेक्ट्रॉन टू बिकम Mn पॉजिटिव। एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 3 पॉजिटिव। समझ रहे ना? N से लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ये? हाँ, N का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर उससे 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो M3 पॉजिटिव बनेगा, जहां पे M का मतलब कोई भी मेटल हो सकता है। क्लियर है? और ये इलेक्ट्रॉन आपका H पॉजिटिव गेन करता है टू बिकम H। एक H और दूसरा H मिलके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये मैकेनिज्म हो रहा है आपका मेटल में, जो कि नॉन मेटल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बिकॉज नॉन मेटल विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ माइनस करके लिखना, ठीक है? माइनस से समझ में आएगा कि उसने लूज किया। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट हिंट डाल के छोड़ देना। रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है? इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, रिएक्शन विथ एसिड को, ठीक है? अभी कौन कौन